लिटरेरी आर्ट के इस चैनल में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक पोयम विच इज़ रिटन बाय A.K. मेहरोत्रा, इंडियन इंग्लिश पोएट, ट्रांसलेटर, एसेइस्ट एंड एडिटर। उनकी जो पोयम है अ लेटर टू अ फ्रेंड, इस पोयम को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आई एक्सपेक्ट कि all of you will like this video. So let us move towards the brief introduction to the poet, and later on we shall see the poem. Line by line I shall explain it to you. See how A.K. Mehrotra was. Very brilliant poet and translator. He was educated at the universities of Allahabad and Bombay. अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा, जिनका जन्म 1947 में लाहौर में हुआ था। He had published 6 collections of poetry in English and 2 of his translations, a volume of Prakrit love poems, The Absent Traveler, which was published by Penguin Classics, and Songs of Kabir. Apart from that, he had written certain other anthologies, 12 Modern Indian Poets, which was published in 1992, and he has edited several books including History of Indian Literature in English, which was published in 2003, Collected Poems in English by Arun Kolatkar, and his collection of essays Partial Recall, Essays on Literature and Literary History, was published by Permanent Black in 2012. Translating the Indian Past, it was his second book of essays, which was appeared in 2019. Friends, he was nominated for the post of Professor of Poetry at the University of Oxford. Mehrotra was nominated for the post of Professor of Poetry at the University of Oxford in 2009. And more than 200 literary works from ancient Prakrit language and from Hindi, Bengali and Gujarati were translated by him. So he was very good translator. Friends, now we shall turn towards the poem. Poem is bit lengthy, and actually this poem is based on the theme of the modern women and dear nature. जो मॉडर्न लेडीज़ है या फिर महिलाएं हैं और उनका जो स्वभाव है उसको भी दर्शाती है। स्ट्रेच रिलेशनशिप्स जो है इन बिटवीन द कपल्स, उसको भी ये पोयम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्रेस करती है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि किस प्रकार से उन्होंने मॉडर्न लाइफस्टाइल में जो कपल्स है उनका रिलेशनशिप हमें यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है। एक कपल है इस पोयम में भी। अब ये जो कपल है वो न्यूली मैरिड कपल है, और वो जो न्यूली मैरिड कपल है उसमें से जो लेडी है वो
बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है और शी इज़ फ्री बाय हर नेचर. शी needs to talk always with somebody. She wants that the people around her should understand her, and uh, she wants to live in the free nature. Apart from that, she is longing for all the luxuries, and one more thing is that she is not happy with the life which she was spending, but then also the couple is living together, and that is the theme which has been expressed by the poet A.K. Mehrotra through this poem. Friends, see A.K. Mehrotra's A Letter to a Friend. अब ये जो पोएट है A.K. मेहरोत्रा, और यहाँ पे जो कैरेक्टर हमें दिया है, तो वो कैरेक्टर क्या कर रहा है कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड एक्सप्रेसिंग हिज न्यूली मैरिड लाइफ. देखिए वो यहाँ पे क्या कहते हैं. आई सेट अप द हाउस वाइल शी वेटेड इन अनदर सिटी. द डे ऑफ आवर मैरिज वॉज स्टिल फार. When she saw the rooms for the first time, she said, "These are worse than bathrooms." She found the walls too narrow and wanted to run away. Your mother and my aunt were both there when this happened. तो यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है पोएम के, तो वो अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख रहे हैं, और उसमें जो बात वो बताना चाहते हैं वो ये है कि उनका जो मैरिज है वो तय हो गया है, और आई सेट अप द हाउस वाइल शी वेटेड इन अनदर सिटी. द डे ऑफ आवर मैरिज वॉज स्टिल फार. उनकी शादी के पहले ही उन्होंने शहर में एक घर देखा था. देखिए फ्रेंड्स, अर्बनाइजेशन का एक इफ़ेक्ट ये है कि ड्यू टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ देयर वाज ग्रोथ इन अर्बनाइजेशन, एंड ड्यू टू द ग्रोथ इन अर्बनाइजेशन व्हाट हैज़ हैपेंड, द people from the villages are coming to the urban areas or suburban areas, and they are residing there. So there is so much rush in the urban areas or metro cities or cities that they find the residential areas quite small to live in. That means if we are going in the metro cities or in the cities, we are witnessing that the apartment system is developed. देखिए फ्रेंड्स, 1947 के बाद एक बात जो इंडिया में घटित हुई थी वो थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा तरह से हो गया कि गांव में जो लोग थे उनको ऐसा लगने लगा था कि वी मस्ट हैव टू मूव इन द अर्बन एरियाज इन ऑर्डर टू अर्न फॉर देमसेल्व्स एंड टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. अपना लाइफस्टाइल सुधारने के लिए गांव से लोग शहर में आने लगे, और शहर में आने के बाद उन्हें ये पता चलने लगा कि किस तरह की हार्डशिप्स उनको वहाँ पे फेस करनी पड़ती है. एक तो जगह की कमी है. जगह की कमी के कारण वहाँ पे 10 फ्लोर्स, 15 फ्लोर्स, 25 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स बनी है, जहाँ पे 500 स्क्वायर फीट की या फिर 300 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स बने रहते हैं, जिसमें कि 2 BHK, 3 BHKs are included in 500 square feet, and 300 and 200 square feet 1 RKs and 1 BHK and 2 BHKs. And they find it quite better to live for themselves. Why? Because it is quite convenient for them to up down from their workplace. So यहाँ पे A.K. मेहरोत्रा जी ने वही एक बात हमें यहाँ पे बताई है एक्सप्लेन करके कि जब
यहाँ इस पोयम के जो प्रोटोगनिस्ट हैं वो अपनी शादी के लिए एक घर देख रहे हैं, शादी के बाद रहने के लिए एक घर देख रहे हैं, और वो घर जो है इतना छोटा है कि जब वो अपनी होने वाली पत्नी के साथ वो घर देखने आते हैं तो वो देखते ही वो शी एक्सक्लेम्स दैट these are worse than bathrooms. When she sees the rooms of that apartment, she says, these are worse than bathrooms. That means they are quite small. The rooms of that apartment are quite small. जो घर उन्होंने देखा था उस घर के जो रूम्स थे वो बाथरूम से भी छोटे थे. शी फाउंड द वॉल्स टू नैरो मीन्स उसका स्पेस भी कम था, एंड वॉन्टेड टू रन अवे, और उसे वहाँ पे रहना बहुत ही सफोकेटिंग लग रहा था, इसलिए उसे लगता है कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकूँगी, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए. योर मदर एंड माई आंट वेयर बोथ देयर व्हेन दिस हैपेंड. और जब वो रूम देखने आए थे शादी के बाद रहने के लिए, उस वक्त ये जो इस पोयम के प्रोटोगनिस्ट हैं या फिर एक मेन कैरेक्टर है वो और उनकी माता जी और जिस फ्रेंड को इन्होंने लेटर लिखा है उसकी माता जी या फिर आंट, ये सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे. और ये सब देख के ये जो पोयम के प्रोटैगनिस्ट है उनको बहुत ही बुरा लगा था, लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि बात ऐसी है कि अगर आपको मेट्रो सिटीज़ में रहना है तो यू हैव टू एडजस्ट विथ योर लाइफस्टाइल. दैट मीन्स जो भी हमें मिल रहा है, जिस प्रकार का भी घर हमें मिल रहा है उसमें हमें रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें वहाँ पे पैसा कमाना है. और दूसरी बात ये है कि वो 1 BHK हो, 2 BHK हो, 1 RK हो या फिर 3 BHK हो, वो उसका साइज़ इतना छोटा रहता है कि हमारा बाथरूम भी गांव में उससे शायद बड़ा हो सकता है. और उसमें जो हमारा हार्ट सफोकेट करता है या हमारा माइंड सफोकेट करता है, देयर इज़ नो रिलीफ फॉर दैट एनीवेयर इन दैट सिटी. इसका मतलब ये है कि उस छोटे से घर में रह के जो हमारा बीपी बढ़ रहा है या फिर हमारा हार्ट जो सफोकेट कर रहा है, उसके लिए पूरे उस शहर में कोई भी रिलीफ उनको नहीं दे सकता है, कोई भी जगह उनको रिलीफ नहीं दे सकती है उस शहर में. उसके लिए उनको अपने लोगों के बीच में ही आना पड़ेगा, गांव में ही आना पड़ेगा. ये बात उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे समझाई है. दूसरी बात यह है, योर मदर इन हर इंथुजियाज्म एंड सिंपल जॉय asked us over for lunch when she said, I know nothing of lunches. It was months before things got normal again anyhow. She spent her first days with the clear sky, a few birds, the little interesting things that gather around trees. We slept in the afternoon and awoke when the long sad evening was already halfway up the window. सो फ्रेंड्स, अब शादी के बाद का या फिर आफ्टर मैरिज उनकी लाइफ किस प्रकार की थी उसके बारे में वो बता रहे हैं. आफ्टर मैरिज वन डे द फ्रेंड्स मदर कॉल्ड देम फॉर द लंच. और वहाँ पे जाके कुछ उस वो फ्रेंड के मदर की कुछ हेल्प करना, ये तो बात बहुत ही दूर की थी, लेकिन उसे कुछ भी बनाना नहीं आता था. तो वो बताती है कि आई नो नथिंग ऑफ लंचेस. दैट मीन्स शी इज़ अनेबल टू प्रिपेयर द फूड. इट वॉज मंथ्स बिफोर थिंग्स गॉट नॉर्मल अगेन. तो इस बात से शायद बहुत ही लोगों को शौक लगा है, जो कि शायद मदर इन लॉ होंगी या फिर वो आंट है या फिर उसके पति देव है, जो कि इस पोएम के मेन कैरेक्टर है. उनको भी बहुत ही बुरा लगा था और वो शॉक भी हुए थे. लेकिन देखिए, ये फैक्ट भी हो सकती है, क्योंकि आज का लाइफस्टाइल ही ऐसा बन गया है कि द चिल्ड्रन आर ग्रोन विथ सो मच लव एंड केयर, एंड द पेरेंट्स डोंट वांट टू गिव मच work to these people. That means effortless growth.
and much more protection is given to the children right from the childhood. ये बात हमें यहाँ पे समझ लेनी है कि बचपन से ही हमें लगता है कि हमारे बच्चों को हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना है और उनकी केयर करनी है। तो इस प्रकार का शेल हम उनकी अराउंड क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुद बहुत अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं दबी जा रही है, क्योंकि हम उनको उतना फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसकी वजह से शायद ये लोग बहुत सी बातें सीखने में और समझने में बहुत ही पीछे रह गए हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल वेयर व्हेन शी सेज आई नो नथिंग ऑफ लंचेस, दैट मीन्स कुछ भी उसको पता नहीं है हाउ टू प्रिपेयर द फूड और हाउ टू कुक द फूड। इट वॉज मंथ्स बिफोर थिंग्स गॉट नॉर्मल अगेन। तो कुछ दिनों बाद ये सब चेंज हो गया था और नाउ शी वॉज एबल टू प्रिपेयर द फूड और कुक द फूड। एनी हाउ शी स्पेंट हर फर्स्ट डेज विद द क्लियर स्काई, अ फ्यू बर्ड्स, लिटिल इंटरेस्टिंग थिंग्स that gathered around trees. We slept in the afternoon and awoke when the long, sad evening was already halfway up the window. So, पहले तो एक बात हमें समझ लेनी है कि दिस इज़ द न्यूली मैरिड कपल और उनके साथ दूसरा और कोई नहीं रह रहा है, दोनों ही रहते हैं। और उसके साथ ही एक बात हमें समझ लेनी है कि जिस घर में वो रह रहे हैं उसका कुछ भी अनुभव उनकी पत्नी को नहीं है। एक्चुअली शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन लिविंग इन दोज रूम्स। वी कैन नॉट कॉल इट हाउस, बट वी कैन कॉल इट द रूम। एंड पहले शुरू में तो बहुत ही उन दोनों के बीच में खिंचाव था, या फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता था उन दोनों को कि हाउ टू मैनेज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। फिर भी वो दोनों एक साथ रह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली देयर रिलेशनशिप इज़ मूविंग ऑन एंड दे आर feeling freely to speak to each other. We slept in the afternoon and awoke when the long sad evening was already halfway up the window. ये लाइन्स हमें यहाँ पे दर्शाती हैं कि slowly and gradually their life became very casual. So देखिए अब वो बाद में कहते हैं, kitchen smoke, the quiet smell of me reading in my chair, the glum book that smacked their tails on the shelves like field mice, the family downstairs quarreling and crying poisoned the tips of needles in her mind, and she entered an imprisoned kingdom, a place I would not touch with my bare hands. Through two short rooms she walked as if I were not out murder, her last secret, and blackness was all feel took hold of me. I wanted it to protect myself. Her eyes glistened, scared and scary. So देखिए फ्रेंड्स, अब वो खाना भी पका रही थी। शी वॉज क्वाइट एबल टू प्रिपेयर द फूड और what we can say cook the food. She was इसलिए उनके किचन से अब खाने की स्मेल भी आने लगी थी। और ये जो पोएट है या फिर ये जो कैरेक्टर है इस पोएम का, तो वो अपने चेयर में बैठ के अपनी किताबें पढ़ता है और वो किचन में खाना बनाती है। और देखिए एक बात हमें यहाँ पे देखनी है कि जो बुक्स है बहुत दिनों से वहाँ पे शेल्व्स पे पड़े हैं, तो वो किसी दिन निकाल के वो पढ़ लेता है। एक और बात है कि यहाँ पे उनके घर के आसपास जो भी कुछ क्वारलिंग या फिर कंट्रोवर्सी चल रही है, तो वो भी उसके मन में कहीं ना कहीं पे बैठ जाती है और शी अगेन फील्स क्वाइट सफोकेटेड इन दैट हाउस। दैट मीन्स इट इज़ द place where she thinks she is got imprisoned. बहुत ही छोटा सा घर है, जस्ट वन किचन एंड वन बेडरूम। दैट मीन्स
only 2 rooms were there in the house, and that may be the reason why she was thinking that she is imprisoned. बहुत सी बातें उसके दिमाग में थी जो वो अपने इस रिलेशनशिप में एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी अपने हस्बैंड के सामने। शायद ये बात अरेंज मैरिज की है। तो एक बात ये भी है कि देयर रिलेशनशिप वॉज नॉट दैट गुड। शी वॉन्टेड टू एक्सप्रेस हर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड, ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हर। वो खुद को उसके सामने व्यक्त करना चाहती है, लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रहा है। कौन सी बात उसको तकलीफ दे रही है, ये बात भी उसको समझ में नहीं आती है। शायद ये बात भी है कि उसे वो प्लेस अच्छा नहीं लगा है, उसे वो घर अच्छा नहीं लगा है, उसके बाजू में जो एटमॉस्फेयर है वो उसके दिमाग में पॉइजन की तरह चुभ रहा है और वो उसे कहीं ना कहीं अस्थिर बना रहा है। तो ये सभी जो बातें हैं वो उसका हस्बैंड नहीं समझ पा रहा है, और उसकी वजह से दोनों की रिलेशनशिप में जो स्प्लिटनेस है, या फिर क्या कहते हैं उसे, एक स्ट्रेचनेस है, वो बढ़ी जा रही है। और यहाँ पे हमें और एक बात उन्होंने समझाई है कि आई वुड नॉट टच विथ माई बेयर हैंड्स थ्रू 2 short rooms she walked, as if I were out murder her last secret, and blackness we all feel took hold of me. I wanted it to protect myself. Her eyes glistened, scared, scary. So एक बात ये भी है कि फिजिकल रिलेशनशिप जो उनके बीच में है वो भी पूरी तरह से अभी हुआ नहीं है, और उसकी वजह से एक डर सा इस पोएट के मन में, उनके मन में एक डर सा भरा हुआ है। और उसकी आंखों की तरफ देखते ही उनके मन में एक डर सा लगने लगता है। उसको भी एक बहुत ही कुछ अनडिस्क्लोज्ड सीक्रेट जो है उसके मन में, वो कहीं ना कहीं खुल जाए, इसका डर उसके मन में लगा रहता है, उसके ये पोएट के जो पत्नी है उसके मन में। और यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है पोएम का, तो वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिसकी वजह से उसको कोई हानि या दुख पहुँचे। और ऐसे ही उनकी मैरिड लाइफ चल रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल है, बहुत अच्छी नहीं चल रही है। देन ऑल्सो दे आर लिविंग टुगेदर, दैट इज़ द मिजरी ऑफ दिस कपल। सी further, at night insects on wings and feet would come to relieve the stiff air. We played under the sharp moon, making little noise since I hardly touched her. The first caw and the excitement of crows as they looked at us in the bed from the chimney. Bees rushed into room. The sun pulled up, and the girl next door wrung her underwear. She knew I admired her ankles even in sleep. The milkwoman brought her dog with her. The postman came up on the steps, and she spent hours reading letter from her family. They wrote to each one of her brothers and sisters. सी अब यहाँ पे जो स्टांजा है तो वो हमें यहाँ पे बताते हैं कि रात में जो कीड़े हैं वो घर के अंदर या फिर हवा में निकल आते हैं, खुली हवा में। और इनकी जो गैलरी है घर की, वो गैलरी के बाहर वो वहाँ पे सोए हैं, या फिर उन्होंने वहाँ पे उनका बेड लगाया है। तो इस स्टांजा के थ्रू हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर मूविंग ऑन, और उनकी जो मैरिड लाइफ है वो सुधरने लगी है धीरे धीरे। शायद उनका कॉन्वर्सेशन या फिर उनका कम्युनिकेशन अच्छा हो गया हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, कि जिसकी वजह से शायद उनके जो स्ट्रेच रिलेशनशिप थे वो अच्छे हो गए हैं। तो ये बात हमें यहाँ पे समझ लेनी है कि unless and until you express yourself, the person in front of you will not be able to understand you. जब तक आप
खुद को सामने वाले व्यक्ति को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या फिर जब तक आप सामने वाले व्यक्ति के सामने खुद को व्यक्त नहीं करते हैं, तब तक वो इंसान आपको समझ नहीं सकता है। फेस रीडिंग या फिर ऐसी कोई बात आजकल रही नहीं है, तो आपको जो भी बोलना है, आपको you have to communicate it with verbal communication. That means verbal communication is much more necessary. शाब्दिक जो हमारा व्यक्त होना है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसका कारण ये भी है कि हमारे मन को शायद थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। तो शायद इन दोनों में अब कहीं ना कहीं पे ये जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर हो चुका है, चैनलाइज हो गया है, और इसी के कारण ही शायद आज इन दोनों के बीच जो फिजिकल इंटीमेसी है वो यहाँ पे हमें दिखाई देती है। द फर्स्ट कॉ एंड द एक्साइटमेंट ऑफ क्रोज एज दे लुक्ड एट अस इन द बेड फ्रॉम द चिमनी. Bees rushed into room, the sun pulled up, and the girl next door wrung her underwear. She knew I admired her ankles even in sleep. So, उनको अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम है, और उनकी हर बात की या फिर हर चीज़ की वो बहुत ही प्रशंसा करते हैं। उनके एंकल्स की भी वो बहुत ही प्रशंसा करते हैं। तो इस लाइन से या फिर इन लाइनों से हमें ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं इनकी रिलेशनशिप जो है वो इट हैज़ बिकम एट ईज. दैट मीन्स बहुत ही अच्छी हो गई है. द मिल्क वीमेन ब्रॉट हर डॉग विथ हर. जो दूध वाली है वो क्या करती है, अपने कुत्ते को अपने साथ लेके आती है. द पोस्टमैन केम अप द स्टेप्स एंड शी स्पेंट आवर्स रीडिंग लेटर फ्रॉम हर फैमिली. तो एक दिन पोस्टमैन आ जाता है, और पोस्टमैन क्या करता है कि जो चिट्ठियाँ हैं या फिर लेटर्स है वो अपने साथ लेके आता है. बहुत सी चिट्ठियाँ उसके सिस्टर्स और ब्रदर्स की इधर से आई है और उसकी फैमिली की तरफ से आई है. तो वो सभी वो पढ़ लेती है और सभी को वो लेटर्स लिखते बैठती है. ये सारी बातें वो अपने फ्रेंड को एक लेटर के थ्रू बता रहा है कि हाउ माई मैरिड लाइफ इज़ गोइंग ऑन. सो फ्रेंड्स, ये भी एक तरफ का रिलीफ है, टू राइट समबडी और टू एक्सप्रेस समबडी. अपने मन को हल्का करने के लिए हमें शायद कुछ लिखना पड़ता है या फिर हमें किसी से बात करनी पड़ती है. तो ये जो लेटर लिखा है पोएट ने यहाँ पे अपने फ्रेंड को अपनी मैरिड लाइफ को बताने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू पोएट को एक रिलीफ मिला है कि वो बता रहे हैं माय मैरिड लाइफ कैसी जा रही है या फिर उनकी मैरिड लाइफ कैसी जा रही है. सो नेक्स्ट देखिए. द लामा वुड नॉक एंड टेक ऑफ हिज शूज बिफोर एंटरिंग. ही वुड होल्ड हर हैंड एंड टॉक ऑफ साइलेंस, ऑफ लिविंग इन द माउंटेन्स विथ जस्ट इनफ कैंडल्स टू स्कैटर द डार्क. We fetched water in metal buckets, cooked in the open and lying on the hillside. None thought of law. She made tea by boiling water, leaves, milk and sugar together and adding condiments in the end. When he left, her palms were wet and I was not jealous. So friends, एक जो कंडीशन है वो बता रहे हैं यहाँ पे. लामा जो एक प्रिस्ट की तरह होते हैं, वो घर के अंदर आते हैं, अपने शूज़ वो घर के बाहर रिमूव करते हैं एज़ पर आवर ट्रेडिशन. और ये जो पोएट है उसकी पत्नी का हाथ वो अपने हाथ में लेते हैं और उससे कुछ बातें करते हैं कि आपका ये जो एक्सपीरियंस है वो कैसे रहा, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर मन में कोई दुविधा है वो बताइए. तो उसके साथ बात करते समय वो बहुत ही फ्रीली बात करती है. उसका हाथ लामा ने पकड़ के रखा है और उसको अच्छा लगता है कि वो उसके साथ बात करे. बहुत ही फ्रीली उसके साथ बात करती है, बहुत ही अटैचमेंट के साथ बात करती है. और चाय बनाती हैं. चाय बनाते समय
जो सामग्री है उसका भी मेंशनिंग यहाँ पे पोएट ने किया है। सब कुछ वो ऐड कर देती है जो कि नेसेसरी है एक अच्छी चाय बनाने के लिए, मिल्क, शुगर एंड अदर कॉन्डिमेंट्स। सो लामा के जाने के बाद उसके हाथ जो है, उसके वो पाम्स जो है वो बहुत ही वेट है, वेट या फिर गीले हैं। वो गीले किस कारण है, तो उसको शी वॉज स्वेटिंग एक्चुअली, एंड it is again the sign that she might have felt any type of physical intimacy with him, or she might have remembered the intimate what we can say memories of her with her husband. So that again is referred by the poet here. See further उन्होंने क्या बताया है कि cross the clean feet, flat roofs and narrow road is bare field. A camel once sat there all day, thin legs folded under the hump. Looking at crows walk through the trees, so has it been. Her blood has got more entangled in its stones. While I have kept to my lamp beads, mirror, jars, a rug. Picture of purple demons, red, black, and white ants, all sons of fat spiders. 3 years and I still wonder what nakedness is. Or does sometimes I notice the couple next door. It's very warm outside and the street are tall and quiet. So friends, again यहाँ पे उनके स्ट्रेच्ड रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है। क्रॉस द क्लीन फीट, फ्लैट रूफ्स एंड नैरो रोड इज बेयर फील्ड. अ कैमल वंस सैट देयर ऑल डे, थिन लेग्स फोल्डेड अंडर द हम्प. तो उन्होंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया है कैमल का, किस प्रकार से वो एक रोड पे बैठा है, अपने फुट जो है उसने वो फोल्ड किए हुए हैं अपने हम्प के अंडर. एंड सी हर ब्लड हैज़ गॉट मोर इंटेंगल्ड इन इट्स स्टोन्स वाइल आई हैव केप्ट टू माई लैम्प beads, mirror, jars, a rug, picture of purple demons, red, black, and white ants, all sons of fat spiders. 3 years and I still wonder what nakedness is. तो पूरी तरह से उनका जो फिज़िकल रिलेशनशिप है वो हो नहीं पाया है, और इसीलिए शायद यहाँ पे उन्होंने एक लाइन यहाँ पे लिखी है, 3 years and still wonder what nakedness is, or does sometimes I notice the couple next door, it's very warm outside. That means जो एक प्रेम या फिर जो एक इंटीमेसी रिलेशनशिप में होनी चाहिए वो यहाँ पे उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं की है, और उन्हें लगता है कि नेक्स्ट डोर में जो कपल रह रहा है वो शायद बहुत ही अच्छी तरह से सुखी रह रहा है, और इसी के कारण वो उनका एग्जाम्पल देते हैं और वो कहते हैं कि द स्ट्रीट आर टॉल एंड क्वाइट. स्ट्रीट्स आर टॉल एंड क्वाइट, बहुत ही लंबा सा रास्ता है लेकिन बहुत ही शांत है, क्योंकि इसमें कोई किसी भी तरह की मूवमेंट उन्हें दिखाई नहीं दे रही है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पोएम समाप्त हो जाती है. तो हमें यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 3 साल से उनका मैरिज रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी को समझ नहीं पा रहे हैं. पत्नी जो है बहुत ही इंट्रोवर्ट है, उसे बहुत बातें करना अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है. जो घर उसने उसके लिए लिया है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, और फिर भी वो वहाँ पे रह रही है. लेकिन शी फील्स हर सेल्फ इम्प्रिजन्ड, जैसे कि जेल में रखा जाता है वैसा उसको लगता है. उसको घूमना फिरना अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं हो रही है. और जब वो अपने आपको अपने पति के सामने एक्सप्रेस करना चाहती है तो शायद वो पति उसको समझने के बाहर है, या फिर उसकी कोई भी सेंटिमेंट्स वो समझ नहीं पा रहा है. इसीलिए शायद उनके रिलेशनशिप में एक
जो स्ट्रेचनेस है या फिर तनाव है वो हमें नज़र आता है, और वो यहाँ पे ये बात हमें बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं. दिस पोएम इज़ एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कपल्स हु आर लिविंग इन द अर्बन एरियाज. और ये अर्बन एरियाज़ में जो कपल्स रह रहे हैं शायद उनका ये बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि न्यूली मैरिड कपल्स में ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि उस टाइप का जॉब जो है वो अर्बन एरियाज़ में लोग कर रहे हैं. और जब तक हम अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पाते हैं तब तक कोई भी व्यक्ति हमारे सामने की कोई भी व्यक्ति हमारे सामने अच्छी तरह से खुद को भी डिस्क्लोज नहीं करती है. तो ये बात हमें कहीं ना कहीं समझ लेनी चाहिए, और इसकी वजह से रिलेशनशिप में तान तनाव हो सकता है. ये सिर्फ कपल्स के लिए ही है ऐसी बात नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो कि हमारे अदर रिलेटिव्स हैं. हम अर्बन एरियाज़ में काम करने के लिए, कमाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमें टाइम नहीं मिल रहा है. वी आर लिविंग जस्ट फॉर आवर सेल्व्स. हम खुद के लिए जी रहे हैं, खुद के लिए कमा रहे हैं, और जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूटे हुए हमें नज़र आ रहे हैं. ना कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में हैं जो कि अब एजड बन चुके हैं, जिन्हें शायद हमारी ज़रूरत है, या फिर हमारे भाई बहन, या फिर कज़िन ब्रदर्स सिस्टर्स, अंकल्स आंट्स, ये सब जो हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स हैं उनको हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं. इसके साथ ही हमारे हमारे जो बहुत ही डियरेस्ट रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ हो या फिर ब्रदर एंड सिस्टर हो, उनको भी हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं. इसका बेसिक रीज़न क्या हो सकता है? तो इसका बेसिक रीज़न ये है कि जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो पैक स्केड्यूल है अर्बन एरियाज़ में, तो वो उसका कारण हो सकता है. और हम पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, या फिर हमारे फिज़िकल प्लेजर्स में ही हम हमारा दिमाग लगा रहे हैं. कहीं ना कहीं हमें घर लेना है, गाड़ी लेनी है, हमारी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, हमारे बच्चों की स्कूल फीस इतनी भरनी है या फिर पूरी करनी है. इन सभी बातों में हम हमारा टाइम, हमारी एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं. वेस्ट कर रहे हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन यूटिलाइज कर रहे हैं, और शायद उसकी वजह से हमारा जो मीनिंगफुल जीना है, जीवन जीना है, वो कहीं पीछे छूट रहा है. शायद हम जिस चीज़ के लिए कमा रहे हैं वो चीज़ हमारे से नहीं हो रही है. वी आर अर्निंग टू लिव हैप्पीली, बट एक्चुअली वी आर नॉट लिविंग हैप्पीली वाइल अर्निंग फॉर आवर सेल्व्स. हम सुखी जीवन के लिए कमा रहे हैं, लेकिन जब हम कमा रहे हैं तब हमारा सुखी जीवन कहीं ना कहीं पीछे छूटता हुआ जा रहा है. ये हम आज अनुभव कर रहे हैं. यही बात हमें यहाँ पे एक लेटर के थ्रू, जो कि पोएट ने अपने फ्रेंड को लिखा है, उसके थ्रू हमें अरविंद A.K. मेहरोत्रा जी ने हमें यहाँ पे बताई है. तो फ्रेंड्स, ये पोयम शायद आप सभी को समझ में आ गई होगी. अगर किसी बात की आशंका है, कोई डाउट है जो कि विच यू थिंक दैट आई मस्ट हैव टू क्लैरिफाई, देन यू कैन कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन. आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.